A very good morning to everyone and welcome to the Than session today. So, before beginning, first of all, I'd like to thank everybody and the Brahma Kumari's team, Sapna Didi, Sangeeta Didi, everybody who conducted and hosted us last week at the ORC. Thank you so much. And for everybody who attended the session over there, it was a very, very great experience, a good experience, in fact. So let us start with the Uttan session. So today we're in the third session of the new series, which was developing patience. And Sangeeta Didi has already joined us. Didi, welcome and Om Shanti, over to you. Om Shanti, good morning, all of you. So happy to see you back. So, और सबको जिसको हमने उस दिन देखा था वो कितने थे? How many of them had I seen last week? I can see today also them. Can I see them today also? Yeah. Wonderful. Thank you. So as Anushka Ben was saying, it was a good experience, I'm suppose. In fact, it was a very short one. If we could have had some lengthy, so you all would have had more of this kind, beautiful experience, and that experience which could really help us in our journey towards perfection. So good, and thanks once again to have come. The angels again, सभी जो भी angels join किया था last time, they've understood the language of the angels, so they will again show themselves and will very nicely, as you all attended that time, अभी भी वैसे ही हम सेशन करेंगे. तो हमारा चल रहा है पेशेंस के ऊपर. तो पेशेंस हमारा, what do you feel? The homework was to have that 4 values of patience. CCTU. How many of us had done that homework, or at least remember? Chalo, if not done, it's okay, but they have remembered it. So how many of them who remembered the homework? 4 values of patience. If they can write the value, बहुत अच्छा रहेगा. Yeah, 4 value. CCTU. Cool, composed, tolerant, and understanding. ये वैल्यू जितनी हमारे में है, that is called patience. तो now we say we like it, बहुत अच्छा लगता है ये बातें, but patience हमारा क्यों नहीं होता है? Though we like, every one of us like to be in the circle of a patient person, no, to be in the company of a patience. बहुत अच्छा है patience. I like, we can adjust however negative we may be, but we are very much, we are able to adjust with a patience person, right? तो patience क्यों नहीं होता है? तो patience का main कुछ causes हम देखते हैं कि एक तो one is repeated mistakes. क्या होता है कि we have हम लोगों को घरों में हमको पता है कि now when we see घर में रास्ते में जा रहे हैं, खड्डे बहुत है, और जब जब हम खड्डे देखते हैं तो हम सोचते क्या है, एमसीडी वाले कभी कुछ ध्यान में नहीं रखते, सरकार क्या करती है, कुछ पता नहीं कब ये भरेंगे. 3-4 नेगेटिव थॉट तो क्रिएट ही कर लेते हैं. ऐसे होता है कंटिन्यूसली. अच्छा, अब एक इसमें कुछ फायदा नहीं है, और आपने कल भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तब भी क्रिएट किया था, और अभी भी देख रहे हो तब भी क्रिएट कर रहे हो. तो आई गो ऑन क्रिएटिंग दिस नेगेटिव थॉट इन दैट. और कितनी बार करेंगे वो थॉट? जितनी बार हम देखते ऐसे देखेंगे
every time I have to see and 1 2 3 the same thought, अभी तक नहीं किया, कल भी नहीं किया, क्या है, कुछ फायदा नहीं. तो now can I say these are important thoughts or waste thoughts? हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं, 4 थॉट्स क्रिएट करें. सो लाइकवाइज अभी तो खाली स्टार्ट ही की गाड़ी लेके और 4 थॉट क्रिएट कर दिया. इसी तरह अब ड्राइविंग देख रहे हैं, देखा क्या है, इनको ड्राइविंग करने को नहीं आता है, कैसी करते हैं. तो एक बहन आई हमारे पास विथ हस्बैंड, कहती है कि व्हेनेवर लाइक ये ड्राइव करते हैं तो जैसे ही वो किसी को रॉन्ग करते हुए या जैसे भी उनको अच्छा नहीं लगता वैसे करते हैं, तो वो बड़बड़ कराते करते रहते. And then to the extent that even if there is no one listening, उनके सबके शीशे बंद है, but he will go on driving, he will go on speaking it. Now what are we doing actually? Creating agitated thoughts when things are not my mistake, not my way. तो जब जब हम ऐसे थॉट्स अब पूरे दिन में, इवन इफ आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग बट आई विल गो ऑन क्रिएटिंग, क्या है इतना कचरा, कुछ समझ में नहीं, इन लोग कुछ करना नहीं आए, करते नहीं है, कितनी बार कह दिया. सो ईयर 4 थॉट्स, ड्राइविंग के समय 4 थॉट, एमसीडी का कुछ दिया 4 थॉट. नाउ आर these thoughts are okay, they are wrong, but are they the situation is wrong, it should not be the way, but am I wrong here? Situation is wrong, A, understood, but I am wrong, B. How many of you feel हम भी गलत है उसमें? तो कितनी बार हम जितनी बार ये थॉट क्रिएट करते जाते हैं, हम इधर एक एजिटेशन पैदा करते. एंड बिकॉज ये एजिटेटेड माइंड है, नाउ आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग माई वर्क, और आई हैव गिवन दैट प्रोजेक्ट टू समवन इमीडिएट, एंड अभी तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आया. अंदर क्या हो जाएगा, पूरा डिस्टर्बेंस. क्यों डिस्टर्बेंस? बहुत इजी हो जाएगा. अभी आप दिया है, उसने कहा था आधा घंटा में मैं कॉल करता हूं, नहीं किया उसने, पर मुझे डिस्टर्बेंस क्यों आना है? क्योंकि मैंने कंटिन्यूसली पूरे टाइम ये नेगेटिव थॉट्स करती गई ना, पूरे इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, एंड दैट registering this kind of negative thought. So I do it, creating thoughts when things are not my way, and then registering these thoughts, accumulating disturbing thoughts in the mind. तब कुछ भी कोई पूछेगा, it's like when I'm creating the disturbing thoughts, what is actually happening? The mind is उसकी एनर्जी लो हो रही. और अगर ये accumulated है, क्या है, सरकार ऐसी, लोग ऐसे, तो then I'm keeping my energy low. अब ऐसे लो एनर्जी में जैसे ही किसी ने गलत किया, क्या हो जाएगा? आई एम बुखार में है, और जैसे ही किसी ने थोड़ा सा मुझे कुछ फैन चला दिया, आई वॉज फीलिंग वेरी वीक. विल माई वीकनेस इंक्रीज और विल इट बी द सेम? आई हैव कोल्ड कफ, और जैसी आइसक्रीम खाई तो कफ बढ़ेगा, कम होगा? बढ़ेगा. और इतना जल्दी क्यों बढ़ जाएगा? इमीडिएटली, मे बी इफ आई जस्ट हैव इट लिटिल वन बाइट हो जाएगा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी कफिंग, नॉट वेल. तो व्हेन माय एनर्जी इज लो, तब कुछ किसी ने थोड़ा सा कुछ लेट किया और नहीं किया, टाइम पे नहीं दिया, तो हम कहते इमीडिएटली एजिटेशन आ जाता है. कारण क्या था? ऑलरेडी वो 3-4 बार क्रिएट कर चुके हैं.
तो द रीजन इज नॉट पीपल आर नॉट सो डेडिकेटेड, नॉट पीपल आर नॉट सो सिंसियर, but the reason is I have created my low energy responses every time when I see things not right. So therefore patience doesn't mean ki that time when I give some project to someone, some work to someone, or when I'm awaiting the results, that time I have to be patient. Well, that is not possible. If throughout the day this is my way of life, इधर कुछ किया, किसी का कोई सोशल गैदरिंग में गए, वहां कुछ ठीक से नहीं देखा, हम बोल तो नहीं सकते ये फ्लावर्स ऐसे रखे, ये रखे, इधर रॉन्ग क्रिएट करते रहते हैं, इधर रॉन्ग क्रिएट करते रहते हैं, एवरी टाइम कुछ ना कुछ फॉल्ट फाइंडिंग मिस्ट नेचर बनता जाता, एंड दिस संस्कार is lowering my patience level. So this is where I have to keep. If I want my patience, I should be very powerful, positive. तो उस समय मुझे क्रिएट, अच्छा अब आप कहेंगे कि नेचुरल है ना, कि जब ऐसे मिस्टेक्स देखेंगे तो देखेंगे ना ये काम ही नहीं कर रहे, सरकार काम ही नहीं कर रही नाउ, तो इट्स लाइक रिपीटेड मिस्टेक देखेंगे तो नेचुरल रिस्पॉन्सेस तो ऐसा ही मिलेगा। अब आप बताओ, घर में कभी कभी घर में एक फैमिली मेंबर का होता है ना कि बहुत अच्छा उनकी नेचर है, एवरीथिंग टू बी इन दैट प्लेस, वो आते ही हर चीज ऑलवेज प्लेस में रखेंगे, चाहे 1 मिनट ज्यादा लगता है, और दूसरे फैमिली मेंबर की आदत है कि जैसे ही आए पहले वो चीज इधर उधर रखेंगे, जूते इधर रख दिए, बैग इधर रख दिया, फिर मोबाइल इधर रख दिया। अब वो हम, हमारे ये नेचर है, उसकी वो नेचर, किसके पास ऐसे फैमिली मेंबर होंगे? देखो है ना। अब मुझे पता है कि ये आएंगी और ऐसे करेंगे, नाउ व्हाट हैव आई टू डू, और ऐसे उसको ठीक रखो, ठीक से करो, ये कितनी बार कह दिया होगा लाइफ में? जितने साल शादी के हुए होंगे ना, उतने बार कर दिया, कहते रहे, बट हुआ क्या अभी तक? जब तक वो, जब से एसोसिएशन है तब से हम करते जा रहे, करते जा रहे, उसका वो संस्कार चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हमारा संस्कार कौन सा चेंज हो गया? जो हम पहले शांत थे, हमारा संस्कार एजिटेशन का हो गया। वाई? एवरी टाइम जब वो उन्होंने वो किया, हमने समझाया, उन्होंने फिर नहीं किया, तो माई समझाते समय एक क्लियर एक्सपेक्टेशन था कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसे रखेंगे, उस सोल का संस्कार नहीं, नहीं रखेगी। तो जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पता है, उसमें क्यों फेल होना? इस एग्जामिनेशन का आंसर पता है, इसका क्वेश्चन पता है, आप कहेंगे रखो, और उसका आंसर है नहीं रखेंगे। तो जब मुझे पता है, उसका संस्कार है, तो दैट टाइम एक बार किया, 2 बार किया, कभी कभी हम जितनी बार उनको कहते हैं, फिर इरिटेट होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट होता है, उतने पीरियड में तो हम 10 बार वो चीज ठीक से रख सकते हैं। इज इट पॉसिबल? इज इट ट्रू? पर क्या करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट, और उसका संस्कार जो है वो ठीक है, कि उसका वो संस्कार ठीक नहीं है रखने का, और मेरा न्यू हैबिट बन गई आर्ग्यू करने का, इरिटेट होने का, एजिटेटेड रहने का। अब उस एजिटेशन में नाउ आई सर्व वाटर टू दैट soul who has come from the office or who has come from outside, agitated, but this is the reason, तो where I have to use, कि मुझे पता है ना कि नहीं करेगी, ठीक है, I know, then again whenever वो
आपने किया, you know this is the संस्कार कि okay, see this is, keep like that. Just to, maybe we have to alert them, we have to tell them, but whilst telling, understanding that that is their sanskar, and in other words, in spiritual language, we say that is the part of the actor. If some actor has been designed, has been assigned that role, कि आप कोई वो सास को रोल दिया कि the daughter-in-law will go on pleading, but you just have to be adamant that time. This is the role being given. Now she is continuously pleading, and you would say as a spectator, क्या है, इतनी सी भी दया नहीं आती, कितनी adamant है, कितनी egoistic है, but that's a role being given to her, and she is just performing that role. Who will get irritated by the mother-in-law's action? जिसको पता नहीं कि ये रोल है, उसका रोल है ना, उसको दिया गया है. तो similarly, this sanskar is nothing but the role of the soul. That role they have decided कि I will do the same. Every role, अभी हमको, जैसे आप सभी है, किसी ने डिसाइड किया वीडियो ऑन करना है, किसी ने डिसाइड किया वीडियो ऑन नहीं करना है, अपना अपना रोल है ना. डिसीजन किसका था? It was your decision. So when it is your decision and you do it, it becomes your sanskar, and that is your part. किसी का पार्ट नहीं है, नहीं करता है, आप बोलते रहो, नहीं करेगा. तो what actually, if we are very intelligent, what they are teaching us? They are teaching us to be cool even if things are not my way. And likewise throughout the day, कितने बार हमको मिल सकते हैं ऐसे लोग जो हमको टीच कर सकते. Their sanskar, their role. If I have this full stop in my mind, अच्छा सरकार नहीं कर रही है, सरकार का रोल है, ठीक है. Whatever I can do, I'll do it. If not, full stop. The one who has the nature of putting full stop to all the waste thoughts when things are not their way, they are the winners in life. They are the winners of the situation that time. ठीक है, रोल है, नहीं कर, उसका रोल वैसा होगा. तो अब हमको, मुझे क्या करना है, मेरा रोल तो खराब नहीं करूं. और इस कारण दुनिया में झगड़े चलते रहते हैं, क्योंकि एक जन अपना रोल प्ले नहीं करता है ठीक से, दूसरा उसका रोल बिगाड़ देता है. और फिर हम कहते हैं आजकल ना रिश्ते बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए. तो रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड हो गए या हम कॉम्प्लिकेटेड हो गए? लाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए. और इसलिए रिश्ते कॉम्प्लिकेशंस जो रिश्तों में थी अथवा मन में थी, तो क्या हो गया, गांठें बांध दी कि ये तो ऐसा ही है, ये तो चेंज होना नहीं है. दिस इज माय गांठ, मैंने बांध दिया. अब मैंने ये गांठ बांध दी. अब पहले गांठ इधर होती है, फिर बहुत देर के बाद गांठ शरीर में आती है, और डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो शरीर में गांठ आई है वो ठीक कर देते हैं, ऑपरेशन हो जाता है उसका. और फिर कहते हैं ध्यान रखना, नहीं तो 4-5 साल बाद फिर मिलेंगे. हमने कभी मुड़ के पूछा नहीं डॉक्टर साहब को क्यों आपने कहा फिर मिलेंगे, आपने ऑपरेशन तो कर दिया. क्योंकि इधर की गांठ का उसने ऑपरेशन नहीं किया, शरीर की गांठ का कर दिया. सो दैट ट्यूमर हैज बीन क्योर्ड, बट द माइंड ट्यूमर इज स्टिल देयर. और वो कौन सा ट्यूमर है? ये तो ऐसा ही है, ये तो पता नहीं कब चेंज होगा, क्या सरकार है, क्या लोग है, क्या अथॉरिटीज है. सो एवरी टाइम आई हैव दिस क्वेश्चन मार्क. दिस इज कॉल्ड दिस संस्कार. So therefore, whenever I am getting agitated,
I am actually undermining or lowering my energy. पार्ट है, पार्ट प्ले करती रहेगी, उसका पार्ट है, वो पार्ट प्ले करता रहेगा उसका। तो एक बार हमारी वी गो टू द एक्सटेंट, हमारी दादी जान की, सो वन सिस्टर वाज, दे वर टेकिंग अ वॉक, सो दादी, she was the chief, 104-year old, you must have sometimes heard about her. So she asked कि how come, how are things, कारोबार ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है? बोला हाँ दादी सब, खाली एक भाई है ना, वो बहुत ऑलवेज कोई काम में ठीक से काम नहीं करता है, कितनी बार भी बोलो वो फिर वो मिस्टेक करता है। दादी ने देखा, कहा कि तुम्हारा संस्कार इरिटेशन का बन गया या उसका मिस्टेक करने का संस्कार ज्यादा बड़ा है? किसका संस्कार ज्यादा बड़ा है? जो जो मेरे को तकलीफ देता है वो संस्कार बड़ा, वो पावरफुल। तो उसका मिस्टेक करने का संस्कार है, लेकिन मेरा। और दादी ने कहा कि अगर आज मैं आपको सपोर्ट करूं ना कि तुम राइट हो, तो तुम्हारा नेचर ऐसे गलती सुनाने का और एजिटेट होने का बढ़ता जाए। इसलिए दादी ने कहा यू आर फर्स्ट रॉन्ग, सो टू मेक हिम राइट यू हैव टू लीव योर संस्कार ऑफ एजुकेशन। दिस इज what is called patience. So if I want to change other person, मेरी पेशेंस मेरे को हेल्प करती। और एक्चुअली व्हेन आई एम, तो एक तो ये संस्कार, और किसी की मिस्टेक देखकर अपना पेशेंस becomes a very big helper and a lesson for that person. I remember once our father is a practicing this Brahma Kumari since 49 years, almost 50 years. So very patience. तो एक बार एक ग्लास का दूध, गरम गरम ग्लास का दूध है, और आई जस्ट ब्रॉट इट, और बस कुछ क्या मिस्टेक हुई, आई मीन आई डोंट नो, एकदम उबल रहा था, इट जस्ट फॉल अपॉन हिम, पूरा उसके हाथ के पर पूरा ऐसे गिर गया। तो अब उस समय तो ये होता है ना कि अरे एकदम, और फिर बॉयल्स, और बोला अच्छा जल्दी लेके आओ, जो भी पानी वानी लेके आओ जल्दी, ये करो ठीक। अब इधर बाकी 4 जन जो देख रहे थे, नाउ सी द रिस्पॉन्स, क्या है समझ में नहीं आता, इतनी कॉमन सेंस नहीं है, तुम ये उस समय क्या जरूरत थी? एंड देन ही हिमसेल्फ गॉट अप, क्योंकि इधर आर्ग्यूमेंट चल रहा है, हम ऐसा चाइल्ड, मेरा ये नहीं था, मैंने ये, उसने उठे, उसको क्लीन किया, अच्छा लेके आओ दवाई लेके आओ। दैट इंसिडेंट लेफ्ट अ सो पावरफुल मार्क ऑन मी कि कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो जाए, व्हाट एक्चुअली मेक्स यू पावरफुल। एक गलती तो हो गई, अब उस गलती को आर्ग्यूमेंट करवाना, दूसरा मैं सपोर्ट करूं, इसमें हमारा वैल्यूबल टाइम जाके जो काम करना है वो तो, दैट इज द टेस्टिंग टाइम, हाउ मच कैन आई बी कूल। एंड रियली उन्होंने किया, फास्ट किया, जो भी उस समय करना है, एंड आफ्टर दैट until today never that incident had been mentioned कि तुम कितनी मिस्टेक करती हो, never. This is called, क्या कहेंगे उसको, this is called patience. So patient doesn't mean कि just keeping quiet, but patience mean
कि is not just waiting but being positive whilst waiting. कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं कितनी देर से बैठी हूँ, क्या है, अभी तक आए नहीं. और फिर हम सोचते कि देखो मैं कितना पेशेंस, आई वॉज सिटिंग फॉर सो लॉन्ग, बट वॉज आई एक्चुअली पॉजिटिव? तो दिस इज कॉल्ड पेशेंस, बीइंग पॉजिटिव whilst waiting. What will happen in that? एक है that person is not coming, you are getting late, that's fine. वो एक मिस्टेक, एक प्रॉब्लम हो रही है, this is a problem, but my impatience will that time will stop my presence of mind. एक जन काम नहीं कर रहा है ठीक से, दूसरे जन को क्या करना चाहिए उस समय, उसके लिए क्या करना होता है, तो वो तो नहीं कर रहा है, मेरे को भी क्या करना चाहिए, दैट आई फॉरगेट. दिस इज कॉल्ड पेशेंस. कि उस समय मुझे, सो आई लूज इफ आई बिकम एजिटेटेड, आई विल गो ऑन द रॉन्ग मोड. क्या है नहीं है, ऐसे रॉन्ग संस्कार है, मेरी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड खत्म हो जाती है. एंड देयरफॉर एक गलत कर रहा है, दूसरा भी गलत कर रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या होनी है, छोटी होगी या बड़ी होगी? बड़ी होगी. दिस इज द रीजन. देयरफॉर पेशेंस हेल्प्स अस कि एक नहीं आया, अच्छा मुझे क्या करना. और जब हम अपनी एनर्जी को उस वेस्ट में नहीं जाते उस समय, बिकॉज ऑलरेडी दो जन का काम को एक जन को करना है, तो वैसे ही प्रेशर ज्यादा है, और उस समय मन मन भी मेरा साथ ना दो, सो देन व्हाट विल हैपन, आई विल बिकम मोर एंड मोर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. सो हु गेव यू द स्ट्रेस? The person who has not come on time, who has not completed the project as per discussion, or your sanskar. A या B, क्या कहेंगे? The person or my sanskar, right? B सब एग्री कर रहे हैं? A और B. This is where I have to keep कि मुझे अभी ये ठीक है, ये नहीं है, ओके. अच्छा, अब मुझे, हम सोचते हैं कि हम क्यों बोलते हैं, उसने तो मिस्टेक की, मुझे क्यों बोलना होता है? हम सोचते हैं नहीं बोलेंगे तो कोई करेक्ट ही नहीं करेंगे. तो आपको करेक्ट करने के लिए मैं रॉन्ग हो जाऊं? एक जन गाड़ी रॉन्ग चला रहा है, मुझे उसको ठीक करने के लिए मैं भी रॉन्ग गाड़ी चलाऊं, या मैं ठीक चलाऊं? और मैं ठीक चलाते चलाते अपने आप वो सीखेगा. तो एटलीस्ट एक जन ने गलती की, उसकी गलती को ठीक करने के लिए मैं तो गलत नहीं रहूं. आई हैव टू दैट टाइम. और पेशेंस में फिर पता चलेगा कि मुझे अभी बोलना है या बाद में बोलना है. Many times when we are impatient, the person had just come, like the child had to come from somewhere outing gaya, 13-year-old child, daughter, she was to come at 6:30 हो गए, 7 हो गए, 7:30 हो गए, फोन नॉट रीचेबल, कुछ उसका पता नहीं है. अब क्या हो जाता है, 1.5 घंटा मन तो लग ही नहीं रहा है कुछ काम में. हाँ, जो हालत होती है सब एक्सपीरियंस किया हुआ है. अब 8 o'clock का द बेल रिंग्स एंड द डॉटर एंटर्स, एंड देन व्हाट विल हैपन? फिर क्या करेंगे आप? सो जो 1.5 घंटे का वो इकट्ठा किया है ना सारा, यू आर जस्ट पोरिंग ऑन दैट पर्सन. उसके अपने इश्यूज है, व्हाई दैट चाइल्ड हैज बिकम लेट.
and then there is curfew in the house. घर एकदम शांत, कोई किसी से बात नहीं कर रहा. I have to be happy that the child has come. But why I'm not happy? Not because the child didn't answer my phone. Her phone was not reachable. She was not so disciplined. She was not so concerned कि my mother must be very angry or my mother must be waiting. She must have been, उसको कुछ खाना नहीं अच्छा लग रहा हो. It's not because her concerns are not like me. The problem was for 1.5 घंटा मैंने जो इधर स्ट्रेस क्रिएट किया ना, वो प्रॉब्लम. टेक इट द अदर वे राउंड. वो 1.5 घंटा हम खाली पावरफुल थॉट्स क्रिएट करते, एवरीथिंग इज फाइन. बाबा की याद करते. उस दिन देखा ना बाप मेडिटेशन, परमात्मा की याद करते, परमात्मा को उसके साथ भेज देते कि ही इज विथ हर wherever she is. So I'm just creating powerful thoughts. In fact, I got a very good time of meditation that time. What would have happened? Enter किया, क्या होता? और खुशी होती. You would have been very welcome. So somewhere my impatience, creation, the sanskar of creating negative thoughts always is actually making the situation, multiplying the situation. जो छोटी सी थी वो एकदम बड़ी हो जाती. एक छोटी थी कि वो टाइम पे वो नहीं आई, इतनी बड़ी वो कैसे हो गई कि रात को कर्फ्यू हो गई, कोई कोई से बात ही नहीं कर रहा है और इस स्ट्रेस में सभी सो गए. बड़ी हो गई ना. 1.5 घंटे की थी कि दैट 1.5 घंटा वो नॉट रीचेबल आ रहा था. वाई इट एक्सटेंडेड टू 12 o'clock and then tomorrow early morning and then going having the breakfast, not talking too much, going to the office stressed. ये 2 दिन तक elongate कैसे हो गई? That 1.5 घंटे के समय, if I that was my examination, उस समय अगर मैं शांत रह जाता, उस समय if I could create, could create that powerful thoughts. That is called mastering your mind. Mind might have that nature. क्या हुआ, क्या कैसे है, कहाँ है, ये माइंड का चैनल था अभी तक. That time I have to tell my mind, सब ठीक है, एकदम परफेक्ट है, everyone is okay. She has not answered, must be कोई प्रॉब्लम होगी. Yes, it could be her sanskar. She is not so concerned. Understood? एंड ये जो नहीं कंसर्न्ड है, शी इज नॉट सो कंसर्न्ड. आपको पता नहीं चल रहा है मेरे में क्या बीत रही है, आपको इतना कंसर्न नहीं है कि मदर्स ऐसे है. आप मदर बनोगी ना तो पता चलेगा. सी द एक्सटेंट. नाउ दिस कंसर्न्स कि द चाइल्ड इज नॉट सो कंसर्न्ड लाइक मी, हमने ये कितनी बार लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया होगा. Was this the situation, or many times even in this 25 or 30 years of association with the child, we had experienced that she is not so concerned like me? We must have experienced. Then once we have experienced, then why we have to repeat it again and again? कि नहीं, उसका कंसर्न मेरे जैसा नहीं है. वो जनरेशन मेरी जनरेशन की तरह कंसर्न नहीं रख सकती. हम तो अपने माँ बाप का बहुत रखते थे, हम तो कभी ऐसे करते नहीं थे. These thoughts are something attacking, devastating thoughts I am creating. Simple remedy. तो क्या सिंपल रेमेडी होगी? वो आत्मा का संस्कार अलग, मैं आत्मा का संस्कार अलग. तो एक ये नेचर, हर आत्मा का संस्कार अलग अलग है और everyone has their role to play. My expectation is my problem. I expect क्योंकि मैं ऐसी हूं, मैं बड़ी डिसिप्लिन हूं, मैं कभी हमेशा कॉल कर देती हूँ,
मेरी आदत है किसी को वेटिंग नहीं करने की, हम सोचते उसके भी वैसी आदत है, उसको भी वैसे करना चाहिए। सो इफ आई हैव जस्ट वन थिंग, उसका रोल है, उसका रोल है accepting the part of the soul. Here where the spirituality comes to our rescue. कि नहीं, उसका पार्ट है, ठीक है, मेरा पार्ट क्यों खराब करूं? एक जन डांस रॉन्ग, दो जन डांस करते हैं ना, और एक जन थोड़ा मिस्टेक, दोनों की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन से ब्यूटीफुल होता है वो परफॉर्मेंस। बट एक जन मिस्टेक करना कर लेता है, दूसरा क्या करना चाहिए उस समय? वो रॉन्ग स्टेप करता है, व्हाट दैट पर्सन हैज टू डू, उसको देखे नहीं, क्योंकि अगर उसको देखते जाएगा वो अपना स्टेप भी रॉन्ग भूल जाएगा। दैट इज द आर्ट दैट टाइम, एंड दैट सोल गोज ऑन परफॉर्मिंग। तो धीरे धीरे वो दूसरा जो है ना, उसको भी अपना याद आ जाए। दिस इज द वे टू करेक्ट द पर्सन, नॉट टू स्टॉप माई डांस, माई परफॉर्मेंस, एंड accuse the person of doing wrong. I have to go on continuing doing right to make others do right. This is called patience. कर सकते हैं हम अपना कंटिन्यू? क्या करना है? बस उसके पार्ट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, वो कर रहा है कर। दिस इज, नहीं तो मेरा ये वाला नेचर, इरिटेशन का संस्कार, फॉल्ट फाइंडिंग का संस्कार, लॉस ऑफ फेथ ऑन अदर पर्सन, मैं मुझे विश्वास नहीं होता है तुम कभी टाइम पे आओगे, एंड देयरफॉर आई कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक। वो तो तुम तो लेट करने ही वाले हो, मुझे तो पता है। सो आई एक्चुअली डिमीन देयर नेचर, बिकॉज मेरा पेशेंस नहीं है। दिस देयरफॉर ये संस्कार कर, एवरीवन हैज द रोल, आई विल प्ले माय पार्ट। कर सकते हैं। और जितना पेशेंस रखेंगे ना, हमारा पावर एनर्जी इंक्रीज होगी। एज इट इज, everyone has their way of doing the things, their role to play, and none of the roles could be as per what I want, perfect. And if I go on getting impatient, agitated, who is the loser? इसलिए बीमारी किसको हो रही है? गलती बच्चे कर रहे हैं, गलती पार्टनर कर रहा है, बीमार हम हो रहे हैं, सजा हमको मिल रही। दिस, ये पावरफुल। तो पेशेंस मतलब ही बीइंग इन द सॉल्यूशन मोड। जैसे मैंने बताया ना, उस सिचुएशन, तुरंत उठे, दूध गिरा हुआ है, जल रहा है, नॉट अ सिंगल वर्ड, और काम कर लिए। इज दिस द राइट वे टू टीच द चाइल्ड? और चिल्लाओ नहीं तो उसके ऊपर उस समय। आपको क्या लगता है बच्चे ऐसे सीखेंगे? उस समय बच्चे ने क्या सीखा? कोई भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आती है तो कितनी कूलली हैंडल करना है। दिस इज, यू हैव टॉट द चाइल्ड नॉट बाय वर्ड्स but your actions. And when you master this art of teaching, you can actually be example in the family, and you can create a very beautiful family. रिश्तों में कोई काठी होगी नहीं। पेशेंस, और दूसरा पेशेंस है विद द रिजल्ट, कि कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, बहुत अच्छा ही होगा। हम सोचते पेश, पता नहीं होगा नहीं होगा, जो भी होना है मेरे लिए अच्छा होना है, एंड नॉट रिपीटिंग इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तब बहुत इजी हो जाता। बिकॉज जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते ना, हम बोल तो देते लेकिन फिर सोचते पता नहीं, अभी तक हुआ नहीं हुआ नहीं।
and then you actually do things as per what has to happen. अच्छा होना है उस अनुसार आप सोचते, होगा होगा या नहीं, यू नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रेजेंट, क्योंकि पता नहीं क्या होगा. वी आर वेरी क्लियर, कुछ भी होना है मेरे लिए बेस्ट होना है. दिस. एंड तीसरा एक संस्कार है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. क्या होता है, करते हैं हम लोग. ये एजिटेटेड माइंड का प्रूफ है. कुछ भी तो जल्दी करो जल्दी करो, और उस समय उसको भी बेचारे को डिस्टर्ब करते रहते. एंड इन अ वे आई एम लोअरिंग द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्सन. जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और वो जल्दी नहीं करता है, मुझे गुस्सा आता रहता है. तो उसको भी डिस्टर्ब किया, खुद को भी डिस्टर्ब किया, और फिर हम कहते काम जल्दी नहीं होता. ये संस्कार, जल्दी करो. तो जितना पेशेंस होगा उतना व्यक्ति पावरफुल. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावरफुल माइंड. इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ अ पावरफुल पर्सनैलिटी, बीइंग पेशेंस. एंड हमेशा बेस्ट रिजल्ट्स तभी होता है व्हेन यू हैव दीज थिंग्स. तो ये होमवर्क हम करेंगे. कौन सा होमवर्क? बीइंग पेशेंट. सो नॉट वैलिडेटिंग, गिविंग लॉजिक. हाँ, एक और ये भी संस्कार बहुत अच्छा है, कॉलिंग अगेन एंड अगेन. अभी 5 मिनट हो गए अभी तक नहीं आए, फिर 5 मिनट हो गए अभी तक नहीं आए. अब आप फिर अब नेचुरली जवाब क्या मिलता है कि अभी रुको ना, तुम काम करने दोगे कि. उसको भी इरिटेट किया, क्यों? क्योंकि खुद इरिटेट होते थे. भाई ठीक है, उसने बोल दिया 10 मिनट, उसका 15 मिनट लग रहा है, उसका 20 मिनट लग रहा है, बोलना भी है तो देख लो. एज इट इज वो अपने टाइम पे ही आएगा. उसको डिस्टर्ब करके और फिर हम सोचते हैं कि जल्दी हो जाना चाहिए जल्दी हो जाना चाहिए. ये भी एक बहुत बड़ा संस्कार है, इसलिए ये देखना है. ये सिंपल सा होमवर्क करेंगे हम होमवर्क. कुछ भी मिस्टेक हुई, IC1 उसका अपना ड्रामा में रोल है, वो प्ले कर रही है. मेरा ड्रामा में रोल बहुत अच्छा है, मैं मेरा अच्छा रोल प्ले कर. तो ये छोटा सा होमवर्क हम करें. इजी. पेशेंस जरूरी है या नहीं? बाबा मतलब ही शांति का सागर, तो परमात्मा से शांति की किरणें बाबा से लेंगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारा माइंड, बहुत पेशेंट. और कोई भी बात, किसी को भी गलती पेशेंस से बताने में ही अपनी बड़प्पन है. तो अपने आप को एकदम पावरफुल बाबा की याद में भी करते हैं. मैं ज्योतिर्बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, शांत स्वरूपात्मा. बाबा के पास चलते हैं, शांति का सागर बाबा. सुप्रीम सोल इज पॉइंट ऑफ लाइट बट ओशन ऑफ पीस. और उससे काफी पावरफुल रेज मिल रही है शांति की मुझे. और मेरे अंदर वो एब्जॉर्ब होती जा रही है शांति की रेस. अपने आप को पीसफुल बना के मैं फिर नीचे आती हूँ. और अपने आप को देखती हूँ. Many situations not my way,
I'm understanding it and being patient, sharp, peaceful. I know what should be my response. Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the session today. And thank you for everybody else for joining. Let us meet the next week for the last session on this topic. And since it is the last session, so we'll be having the question and answers also. So please come prepared with that. Thank you, everyone. Om Shanti. Have a nice day. Thank you.